Hello everyone, welcome back to Hexa IAS. So in the last video, we have done till the structure of Indian Constitution, where we have looked at each part and each article of the Constitution. Now in this video, we are going to discuss making of Indian Constitution. So from where the idea of Constituent Assembly emerged to the final document, which is today known as Indian Constitution, what was that journey? Let's look at it. So we are going to look at making of Constituent Assembly. Right. So up till 1934, all the efforts that were put in by our freedom fighters, by our political leaders of that time, were about reforming the already existing laws, already enacted laws by British government, which were like more representation of Indians into the executive council, into the legislative body of viceroys, and things of that stuff, like giving more autonomy to province. So they were all more of incremental in nature rather than something which could just change the path of Indian struggle. And that path changing event, or rather the path changing thing that happened, was when Mr. M.N. Roy in 1934 talked about the need of a constituent assembly for making the Constitution of India. Now, he was the first person who talked about Constituent Assembly. Who was M.N. Roy? M.N. Roy was a revolutionary. He was a Marxist who was born in 1887 in West Bengal, and he was associated with a lot of secret revolutionary groups, secret revolutionary organizations. These secret revolutionary organizations used to do bombings, used to plan or rather try to assassinate British officials so that they can challenge the British authority. One such example is he was part of something called Jugantar Party, which was involved in armed rebellion, and they tried to kill, assassinate a lot of British officials. He also used to make explosives. He used to train his fellow revolutionary for guerrilla warfare. Guerrilla warfare is basically fighting in a closed setting where there are some buildings, where there are some you know basically not in a plain area. So guerrilla fighting includes like hiding and then shooting people. Now, due to such revolutionary activity of Mr. M. N. Roy, he went into exile. Of course, like he was in the eye of British officials, so he went into exile. He had to leave the countries for his own safety. And during this exile, he traveled in a lot of countries, including Indonesia, Malaysia, USA, USSR, Mexico, and he also co-founded Communist Party of Mexico in 1919, and it was the first communist party in the complete Americas, including North and South Americas. So he was a quite a revolutionary figure, and he was the first person who gave the idea of a constituent assembly. He talked about a sovereign constituent assembly, which means there should not be any British officials or any outsiders into this constituent assembly, and there should not be any pressure from any outside force, so that the constitution of independent India can be made in the complete interest of Indian people. Now, this idea of Mr. M. N. Roy started a seed of constituent assembly and constitution. So it was a it was a change from these reformative ideas into the existing laws of British India to making of a new constitution. So it was very important aspect, and it was very important event in the making of Constitution of India. Now, in 1935, in 1935, in one of its annual meeting, Indian National Congress demanded that there should be
a constituent assembly. So they draw this inspiration from the idea of Mr. Amenloy, and they demanded a constituent assembly. And what was their idea of constituent assembly? Their idea was that this constituent assembly should contain elected representatives who should be Indians. Their belief was that the aspirations and the dreams of independent India could only be understood by these elected representatives of India, and the constitution should be made in such a way that Indians' aspirations should be achieved after independence of India being achieved. Now, in 1938, Mr. Jawaharlal Nehru declared three things. He made a declaration. उस declaration में था क्या? उस declaration में तीन बातें कही नेहरू जी ने. He proposed three things. First is that there should be a constitution of India should be drafted. एक तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए. And who will make this constitution? By a constituent assembly. Like, it should not be some 6-7 people coming together and make constitution. No, it should be made by a proper constituent assembly. Second was, this constituent assembly should be elected on the basis of universal adult franchising. All the adult will participate without any discrimination, universal, without any discrimination on the basis of your class, caste, any gender or whatever. Like, everyone will participate in the election of constituent assembly. Third demand in 1938 made by Mr. Jawaharlal Nehru वो ये थी कि this constituent assembly will be free from outside influence. Again, sovereign body बनाना चाह रहे थे इसको, right? देखो, sovereign का मतलब होता है कि that work independent of anybody or anything, जो अपने आप में काम करे, अपने डिसीजन खुद ले, इंटरनली एक्सटर्नली कोई प्रेशर ना हो. दैट इज कॉल्ड सोवरेन. हम सोवरेन को और देखेंगे जब हम प्रीएम्बल में सोवरेन का मीनिंग देखेंगे, वहाँ पे और डिटेल में देखेंगे. बट फॉर द टाइमिंग अंडरस्टैंड, सोवरेन का मतलब ये होता है कि नो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर, राइट. 1938 में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिमांड रखी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया. उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी. उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर उन मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा. और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी फ्री फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस होगी और सोवरेन होगी. जब हम ये बात करेंगे सोवरेन होगी, तो यहाँ से सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि हम लोग एक कंप्लीट सेल्फ रूल की बात करना चाह रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेयर. अब 1938 के बाद 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इन यूके. और इसमें जो हमारी डिमांड्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके टू सर्टेन एक्सटेंट एक्सेप्ट की गई. क्या था ऑगस्ट ऑफर? देखो, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था, राइट. 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था, तो ऑब्वियसली यूके वाज इन्वॉल्वड इन दिस. और यहाँ से इंडियन लीडर्स, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स प्रेशर बना रहे थे यूके पे फॉर इंडिपेंडेंस. तो उस टाइम पे ब्रिटिश में जो गवर्नमेंट थी उसके प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल. उन्होंने एक ऑफर भेजा. उन्होंने कहा, रादर ऑफर भेजने का जो रीज़न था वो ये था कि उनको कोऑपरेशन मिल जाए वर्ल्ड वॉर 2 में
इंडियंस की तरफ से। मोटिव ये था ऑगस्ट ऑफर भेजने का। इस ऑगस्ट ऑफर में क्या क्या ऑफर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो पहला तो उन्होंने ये ऑफर किया कि इंडिया का जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा वर्ल्ड वॉर टू में, ब्रिटिश इंडिया का जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा वर्ल्ड वॉर टू में, उसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल के हेल्प से लिए जाएंगे। और इस वॉर एडवाइजरी काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। ये अगस्त ऑफर का पहला। तो बेसिकली वही है ना कि अब उनको मनाना है इंडियंस को, कुछ तो उनको थोड़ा बहुत टॉफी देनी पड़ेगी ना, वरना कैसे मानेंगे इंडियन। दूसरा उन्होंने कहा कि हम वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। देखो डोमिनियन स्टेटस क्या था उस टाइम पे, जब ब्रिटिश की बहुत सारी कॉलोनीज थी ना, तो वो बेसिकली कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बजाय क्या करते थे कि मेजोरिटी सेल्फ रूल दे देते थे, सिग्निफिकेंट लेवल पे सेल्फ रूल दे दिया जाता था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट जैसे कि फॉरेन पॉलिसी का लेटर से कुछ पार्ट उसको क्राउन के कंट्रोल में रख देते थे। तो मोस्टली था इंडिपेंडेंस थी, लेकिन सर्टेन चीज़ें थी वो कंप्लीट सोवरेन नहीं था, जिसमें होता कि कोई इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, वो नहीं था। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसा ही था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल रहेगा। ऑफ कोर्स इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इंडिया वाज लुकिंग फॉर कंप्लीट सेल्फ रूल, राइट। तीसरी चीज जो उन्होंने ऑफर करी वो ये करी, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ना कुछ एक्ट आए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये कहने को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, बट इनका स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन लगभग कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही होते थे। और इंडिया का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ठीक ठाक तरीके से इंस्पायर्ड है। तो इन्होंने तीसरा प्रोमिस ये किया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेवल का अगर जो चेंज किया जाएगा, कुछ भी फ्रेमवर्क लाया जाएगा या कुछ नया लाया जाएगा, कुछ चेंज किया जाएगा, उसमें एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की अप्रूवल ली जाएगी। कोई एक बॉडी बना देंगे, ठीक है, उसकी अप्रूवल से करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वो सीट दिख रहा है जहाँ पे वो मान रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप की एक बॉडी बनाई जाए जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। डायरेक्ट नहीं है, बट एक तरीके से वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम ये करने को तैयार हैं। चौथी एक और चीज़ उन्होंने कही वो ये कही कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हम इस्टेब्लिश करेंगे, कुछ नया बनाएंगे या कुछ सर्टेन चेंजेस लाएंगे, तो उसमें माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी लेके चलेंगे, कंसेंट लेंगे माइनॉरिटीज़ की। अब क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का टॉपिक आ गया कि हाँ हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेवल का कुछ भी चेंजेस लेके आएंगे तो उसमें माइनॉरिटी का इंटरेस्ट माना जाएगा, तो इसके चलते मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि उनके लिए मेन यही था, उनका फियर क्या था, उनका फियर ये था कि मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, कल को अगर मान लो पाकिस्तान अलग नहीं होता तो इंडिपेंडेंस के बाद मेजोरिटी रूल होगा, हिंदू रूल होगा। तो उनका मानना ये था कि मुस्लिम्स सबॉर्डिनेशन में आ जाएंगे। तो उनका मेन जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो यही था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड किया जाए। तो हमने देखा 1934 में एम एन रॉय ने बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, 1938 में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने तीन बातें रखी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इलेक्शन के बेसिस पे बनेगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे, और सोवरेन बॉडी बनाई जाएगी। उसके बाद 1940 में हमने देखा ऑगस्ट ऑफर के बारे में। अब
फिर आता है 1942। 1942 में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो यूके में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। ये इनको इंडिया भेजा गया, और भेजने का कारण वही था कि जो लोग इंडिया में जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की, इंडिपेंडेंस की, सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, इसको लेके कि इसके बारे में क्या किया जाए, तो इनको भेजा गया। तो इनका जो आना था और जो इन्होंने काम किया, उसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। इसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन में इन्होंने क्या क्या ऑफर किया? पहला, इन्होंने वही बात की कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वॉर के बाद। पहली बात इन्होंने ये रखी। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना देंगे, जैसा कि डिमांड की गई थी, लेकिन वो भी हम पोस्ट वॉर करेंगे। पहले वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाए, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि जब तक ये सब नहीं हो जाता, तब तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे। यूँ समझ लो जैसे आज के टाइम पे स्टेट्स है ना, कह रहे उनको हम ठीक ठाक ऑटोनॉमी दे देंगे, इनको इनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स तैयार कर देंगे, इन सब्जेक्ट्स पे ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, और उनको लिए इनके लिए जो ब्रिटिश वाइसरॉय है उससे परमिशन लेने की उनकी वो लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करें। दे विल नॉट इंटरफेयर इनटू द मैटर ऑफ प्रोविंस ऑन दो सब्जेक्ट्स विच विल बी गिवन टू देम। इन्होंने ये 3 बातें रखी। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड, क्योंकि मुस्लिम लीग का मेन फंडा क्या था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ध्यान रखें। यहाँ पे तो कुछ ऐसी बात नहीं रखी गई। वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे पोस्ट वॉर, वो कर देंगे। तो अब मुस्लिम लीग क्या चाह रहा था कि अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, एक बने पाकिस्तान के लिए, एक बने इंडिया के लिए। तो मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के इस ऑफर को ठुकरा दिया, तो इसका कुछ बना नहीं। ठीक है जी, टाइम बीतता गया। नाउ कम्स 1946। इन हाइंडसाइट नाउ वी नो दैट वी आर ऑलमोस्ट हेयर टू गेट इंडिपेंडेंस। हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें इंडिपेंडेंस मिलने ही वाली है। देखो इस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट क्या था। देखो ओवर टाइम चल रहा था, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस वाज इंटेंसिफाइंग इन इंडिया। हमें डिमांड चाहिए थी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी, बहुत ही इंटेंसिफाई हो चुकी थी। लीडर्स बहुत ही इस टाइम पे प्रेशर कर रहे थे कि हमें जो इंडिपेंडेंस चाहिए। इस टाइम पे मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी 2 नेशन थ्योरी पे, कि रिलीजन के बेसिस पे पाकिस्तान बनना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक यूनिफाइड इंडिया चाह रही थी, वो पार्टीशन के अगेंस्ट थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आया आपका कैबिनेट मिशन। इस कॉन्टेक्स्ट में आया आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रपोजल्स थे, इन्होंने क्या क्या ऑफर किया, देखते हैं। पहला तो इन्होंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया कि दिल नॉट बी एनी 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्चुअली इंडिया को पोस्ट इंडिपेंडेंस एक स्ट्रक्चर बना के दिया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर देंगे, जिसको सरप्राइजिंगली मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या था, उन्होंने कहा कि 3 टियर फेडरेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे इंडिया का। 3 टियर फेडरेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे इंडिया का। व्हाट वाज दिस 3 टियर फेडरेशन स्ट्रक्चर? पहला कहा कि पहले हम बनाएंगे प्रोविंसेस,
प्रोविंसेस आर लाइक स्टेट्स, जैसे हमारी यहाँ स्टेट है ना, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली तो यूटी है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। ये प्रोविंसेस बनाए जाएंगे आपके लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे। तो ऑब्वियसली अब जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हम प्रोविंस बनाएंगे तो उसमें रिलीजन का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा बनाएंगे यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। मतलब मान लो ये एक प्रोविंस है, ये एक प्रोविंस है, ये एक प्रोविंस है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस है, इनको कंबाइन करके एक यूनिट ऑफ फेडरेशन बना देंगे अच्छी गवर्नेंस के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए। तीसरा बनाया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास डिफेंस का सब्जेक्ट रहेगा, जिसके पास फॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट रहेगा, जिसके पास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट रहेगा। और इस मिशन प्लान में ये भी कहा गया कि प्रोविंस को जो सब्जेक्ट दिए जाएंगे वो ठीक ठाक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन गवर्नेंस के सब्जेक्ट है वो प्रोविंसेस को ट्रांसफर किए जाएंगे, और उसका उसमें यूनियन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है। इस प्रोविज़न की वजह से मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके चलते दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब देखो 1934 से शुरू हुआ। 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल सेशन में बात रखी गई। 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने 3 प्रपोजल रखे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, और इसमें जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे, और ये बॉडी सोवरेन होगी। उसके बाद 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया, 1946 में हमारा ये कैबिनेट मिशन आया, और यहाँ पे हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन क्या थी। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 389 मेंबर्स की थी। टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 389 मेंबर्स की थी। इस 389 में 296 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में इंडिया था वो थे, और 93 जो प्रिंसली स्टेट्स थी। देखो था क्या था, ऐसा ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो ऐसा थोड़ी था कि ऐसे कोई एक यहाँ पे राजा बैठा हुआ था, उन्होंने अटैक किया, पूरे इंडिया पे रूल स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं था, छोटे छोटे किंगडम्स से। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप उस टाइम पे देखते हो कैसे मुगल पीरियड के जो एंड में कैसे इंडिया में छोटे 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 रूलर से छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था इंडिया। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद उन्होंने एक्सपेंशन रोक दिया। तो स्टिल इंडिया में ब्रिटिश रूल के साथ साथ कुछ प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो उनको टोटल 93 सीट्स एलोकेट की गई और 296 ब्रिटिश इंडिया को की गई। अब जो प्रिंसली स्टेट्स से जो मेंबर आने थे वो थे नॉमिनेटेड, यहाँ पे इलेक्शन नहीं किए जाएंगे। इनको नॉमिनेट कौन करेगा? रूलर करेगा, ऑब्वियसली द मोस्ट पावरफुल पर्सन उस प्रिंसली स्टेट का। अब जो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे उसमें हर प्रोविंस को सीट एलोकेट की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन डिवाइडेड थी डिफरेंट प्रोविंसेस में, उसी प्रोपोर्शन में टोटल 296 को
सीट्स को डिवाइड किया गया। अब जो ये सीट्स थी, मान लो किसी भी एक प्रोविंस में जितनी भी सीट थी उसको फर्दर डिवाइड किया गया मुस्लिम सीट्स में, सिख सीट्स में और जनरल सीट में। जनरल सीट्स में, जनरल सीट्स कौन सी थी? बेसिकली नॉन मुस्लिम एंड नॉन सिख सीट्स, राइट। और यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट भी था। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी एक प्रोविंस में टोटल मान लो 100 सीट दी गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसमें से मान लो 40% जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, तो 40 सीट मुस्लिम्स की, मान लो 30 सीट सिख की और बाकी 30 सीट हिंदू की फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इन 40 सीट्स के इलेक्शन पे, ठीक है, मान लो एक ये पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे केवल मुस्लिम लोग ही वोट देंगे इसको, हिंदूज या सिख्स वोट नहीं देंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। इस इलेक्शन में आउट ऑफ दिस 296 सीट, 208 सीट्स वर won by Indian National Congress. Okay, mind you, UPSC will not ask these seats. These are just to explain you, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी। अब देखो, अब हमने कहा कि 208 सीटें जीती कांग्रेस। क्या ये इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन थी? नहीं, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। ये कैसे थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। मतलब क्या? एक प्रोविंस है, उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसमें कुछ मेंबर हैं जो इंडियन इलेक्टेड मेंबर हैं, वो लोग उस प्रोविंस से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा उन लोगों ने इलेक्ट किया था। और जो ये लोग हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, इनको कौन कैसे इलेक्ट किया गया? ये भी लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी पे ही था, क्योंकि लिमिट थी किस बेसिस पे कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, जेंडर रेस्ट्रिक्शन थी। तो not every adult was able to vote into the provincial government election. They were restricted by property, education qualification and so on. But still, they elected their member of constituent assembly. Now, इतना सब restriction होने के बाद भी constituent assembly जो बन के आई, वो एक complete, diverse representative of almost every section of citizen of India of that time. रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, वीमेन भी थी, मैन भी थी, एंग्लो इंडियन भी थे, पारसीज भी थे एंड व्हाट नॉट। सारे इंपॉर्टेंट लीडर भी थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। मिस्टर महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गांधी जी ऐसे ही थे, उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था नहीं, वो अपना देश को आजाद करवाना चाह रहे थे, करवा दिया अपना, चल पड़े और क्या। अब ये जान लेने के बाद कि कैसे बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, कितनी सीट्स थी, क्या था, अब मीटिंग्स की बात आती है। देखो, मुस्लिम लीग ने मीटिंग्स बॉयकॉट की, उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की, लेकिन वो तो मान गए थे कैबिनेट मिशन प्लान पे। क्या हुआ? देखो, उनका कहना ये था, पहला तो ये कि उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। उनका मानना ये था कि जहाँ पे जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन थी जितनी इंडिया की, उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और मुस्लिम लीग को तो उसमें बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उनका ये कंटेंशन था। दूसरा, उनको अगेन वही फियर ऑफ हिंदू डोमिनेशन चल रहा था। इनका यही था कि
आफ्टर ऑल यूनियन गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट तो फिर सारे वोट करेंगे, तो उसमें तो फिर हिंदू मेजोरिटी आ जाएगी, तो फिर वो तो मुस्लिम्स को सबॉर्डिनेट कर देगी। तो इसलिए उन्होंने ये सब मीटिंग्स को अटेंड नहीं किया। ठीक है जी, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और उनके इंपॉर्टेंट काम देखते हैं। तो जो पहली मीटिंग हुई, हमने देखा 1946 में था हमारा कैबिनेट मीटिंग पे आया था। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया। इट वॉज अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंच कन्वेंशन, फ्रेंच में भी ओल्डेस्ट पर्सन को टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को मिस्टर नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब? देखो, जैसे होता है ना कि कोई कंपनी है, कोई कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उससे पहले बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, किस मार्केट को टारगेट करेगा, कितनी इसकी प्राइसिंग होगी, मास होगा, प्रीमियम होगा, नीच होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। इसलिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसा कैसा होगा। इसमें उन्होंने वो सारी बातें रखी। इस सोशलिज्म की तरफ हम बढ़ेंगे, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे इंडिया को, सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल रखा जाएगा, सोवरेन होगा इंडिया, है ना, यूनाइटेड इंडिया होगा। इसको 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसी का मॉडिफाइड वर्जन हमारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। राइट, ठीक है जी। उसके बाद काम चलता गया, कॉन्स्टिट्यूशन पे बनता गया। 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार है। 26 नवंबर को कुछ सर्टेन प्रोविजंस, जैसे कि सिटीजनशिप का प्रोविजन और ये सारे प्रोविजन मान लिए गए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, कुछ सेक्शन ही लागू किए गए थे जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट थे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। राइट, ओके। अब इसी बीच में 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया। क्या क्या किया इसमें उन्होंने? पहला तो इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दी कि ब्रिटिश रूल खत्म होता है और इंडिया और पाकिस्तान विल नाउ बी इंडिपेंडेंट कंट्री। दूसरा, इसी प्लान में पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 कंट्रीज, इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, अलाउ कर दिया। तीसरा, they declared that it is an end of British paramountcy on India and
They rendered all the princely states free and independent, and they gave them three choices: either join India, join Pakistan, और बी इंडिपेंडेंट। और यहीं से शुरू होती है इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर को लेके लड़ाइयाँ। ठीक है। चौथा इसने क्या कहा? चौथा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सोवरेन बॉडी घोषित कर दिया था, that there will not be any external or internal influence into the constituent assembly and their working, right? And they were free to abrogate, means to repeal, to delete them off, और ऑल्टर एनी लॉ। उस टाइम पे इंडिया में जो भी कानून थे, एनी लॉ, उसको वो चाहे तो कम्प्लीटली उसको रब डिलीट कर सकते थे या उसको चेंज कर सकते थे। तो इसका ये मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो फंक्शन थे। एक तो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था, दूसरा वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम कर रहे थे। इट कंटिन्यूड टिल 1950, 26 जनवरी, और उसके बाद ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, और फर्स्ट इलेक्शन के बाद हमारा जो था वो पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमेटीज थी। जैसे आज के टाइम पे हमारी पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटीज होती हैं जो अलग अलग काम देखती हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी कमेटीज थी। दो टाइप की कमेटीज थी, एक मेजर और एक माइनर कमेटीज। माइनर कमेटी बहुत सारी थी, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। मेजर टोटल 8 कमेटीज थी। इनको कौन कौन चेयर कर रहे थे, यूपीएससी पूछ सकता है। देखो 4 लीडर थे टोटल, ठीक है। कौन कौन थे? एक थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एक थे हमारे सरदार पटेल जी, एक थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे, और एक थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। इनके पास थी ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर देना, उसको ड्राफ्ट देना, उसको टाइप करना, पूरा काम इनके पास था। तो ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 2 कमेटीज थी। एक थी आपकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, दूसरी थी एडवाइजरी कमेटी, सॉरी माय बैड, स्टीयरिंग कमेटी। एडवाइजरी कमेटी तो पटेल जी के पास थी। अब पटेल जी के पास एक थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और दूसरी थी एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट, ऑन माइनॉरिटी राइट, ऑन ट्राइबल वेलफेयर एटसेट्रा। एडवाइजरी कमेटी। 3 कमेटी थी नेहरू जी के पास। एक थी यूनियन पावर कमेटी, दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसको ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी थी स्टेट्स कमेटी, तीसरी थी स्टेट्स कमेटी। ठीक है। तो टोटल 8 कमेटीज, 4 लोग उसको चेयर कर रहे थे। ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि एक बार याद हो जाए, बहुत ही आसान है। अंबेडकर जी के पास थी ड्राफ्टिंग कमेटी, राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी 2, एक थी स्टीयरिंग कमेटी,
और दूसरी थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। पटेल जी के पास थी हमारी जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी वो थी नेहरू जी के पास थी, उनके पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी। और दूसरी थी एक एडवाइजरी कमेटी, किस चीज़ की एडवाइजरी, फंडामेंटल राइट की, माइनॉरिटी वेलफेयर की, ट्राइबल वेलफेयर की। उसके बाद थे हमारे नेहरू जी, इनके पास थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इनके पास थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के साथ साथ इनके पास थी यूनियन पावर कमेटी, और तीसरी इनके पास थी स्टेट्स कमेटी। ठीक है जी, ये 8 मेजर कमेटी थी और इनको ये लीडर्स चेयर कर रहे थे। अब लास्ट पार्ट आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। पहला उन्होंने कहा कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में हमने देखा जो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड थे वो भी बहुत ही एक लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे ही थे। लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चन में पूछ ले तो हम इसको रादर देन ऐसे छोड़ें कि एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, वी कैन आर्ग्यू दैट इवन दो द वे इन विच लीडर्स वर इलेक्टेड वो शायद इतना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर नहीं था, बट स्टिल अगर डायरेक्ट इलेक्शन कंप्लीट तरीके से भी बनाते तो भी शायद वही लीडर आते जो अभी भी आए, है ना, क्योंकि लीडर्स तो वही मास लीडर ही थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इस क्रिटिक को हम ऐसे डिफेंड कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो क्रिटिसिज्म आता है वो आता है कि एक सोवरेन बॉडी नहीं थी। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं थी? सोवरेन बॉडी इसलिए नहीं थी कि इसको बनाया तो एट द एंड ब्रिटिश की परमिशन से। टेक्निकली हमने सोवरेन कहा था जिसके ऊपर एक्सटर्नल इंटरनल कोई इन्फ्लुएंस ना चलता हो, बट ये बनी तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, और उस टाइम पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट चल ही रही थी, तो ऐसा तो नहीं था कि थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस ना रहा हो, कुछ तो इन्फ्लुएंस रहा होगा। तीसरा ये था डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कि 208 लोग तो इसमें कांग्रेस ही थे। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एट द टाइम कांग्रेस वाजंट द कांग्रेस विच इज ऑफ टुडे। उस टाइम की कांग्रेस एक किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करती थी, उसमें हर आइडियोलॉजी के लोग मिक्स्ड थे, उसमें हर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया जाता था, उसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जाता था। तो नो डाउट कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी, बट कांग्रेस इन इटसेल्फ वाज क्वाइट डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो इस बेसिस पे क्रिटिसाइज करना बनता नहीं इतना खास। उसके बाद कहा कि लॉयर और पॉलिटिशियन से डोमिनेटेड थी। अब देखो बात सच्चाई है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या हम किसी को भी बैठा देंगे? देयर शुड बी एटलीस्ट एजुकेटेड इलिटरेट पीपल हो, जिनको कुछ तो नॉलेज हो। देखो बुरी बात थोड़ी कि लॉयर और पॉलिटिशियन ही थे, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग थे, इसमें क्या दिक्कत है। और पांचवा कहा हिंदूज डोमिनेटेड थे, बट हिंदूज डोमिनेटेड बेसिकली थे, मान लिया, लेकिन एक बात ये भी तो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी सेक्युलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी माइनॉरिटी के वेलफेयर की बात करता है, फिर भी इक्वालिटी की बात करता है। तो इन बेसिस पे हम क्रिटिसिज्म को ऐसे जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, इधर उधर दिख जाते हैं, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस video, please like the video, subscribe to the channel, press that bell icon so that you get notification next time I'm going to upload this video. By the way, I'm going to upload one video every day, and I'm going to complete this full series on polity on this particular channel. Make sure you share this video with fellow aspirants and ask them to subscribe too. Thank you very much. Have a nice day.